So the topic of the day is branch and bound algorithms. So branch and bound algorithms are quite similar to like divide and conquer, but in principle they are different from that. So what is a branch and bound algorithm used for? They are used for solving the optimization problems. Like in the last lecture, again, the branch and bound algorithms are used for optimization problems. What are optimization problems? Where we are trying to maximize or minimize the value of some objective function. Objective function क्या हो सकता है? For example, maximizing the throughput, minimizing the waiting time. तो मैक्सिमाइज करना किसी चीज को या किसी चीज को मिनिमाइज करना, उसके लिए हम लोग ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच यूज करते हैं. Branch and bound is particularly useful in those cases where the two set of algorithms fail to provide the optimal solutions. For example, greedy method and dynamic program. Basically greedy method तो है ही है, जो फर्स्ट सॉल्यूशन मिलता है वो उसी को एक्सेप्ट कर लेता है, ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाता नहीं है. लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन ऑप्टिमाइजेशन. बट इन केस आप डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो यू यूज द ब्रांच एंड बाउंड. What is the biggest challenge in case of branch and bound is the amount of time it takes to solve the problem. एक सर्च स्पेस होती है, तो व्हाट हैपेंस इज दैट ब्रांच एंड बाउंड जो है अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पूरी की पूरी सर्च स्पेस को चेक करता है. सो इट गोज थ्रू द कंप्लीट सर्च स्पेस. That is why the amount of time taken by the branch and bound algorithm can be very large. So what happens is कि आप अगर branch and bound को effectively use करना चाहते हैं, तो जब हम एक ट्री की तरह से फर्स्ट नोड से एक लोअर लेवल पर आते हैं, तो वी हैव टू टेक वाइज डिसीजंस एज टू हमें कौन कौन से सॉल्यूशंस को या सर्च स्पेस को एक्सपैंड करना है और कौन कौन से रास्ते पर या पाथ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जाने से हमें सॉल्यूशन मिलने के चांसेस नहीं हैं. If we make this decision very carefully, then we can reduce the search space. और जब हम search space को reduce करते हैं, तो we are able to find the solution in lesser time. The general idea behind the branch and bound is just like a breadth first search that we use for the optimal solution. लेकिन ब्रांच एंड बाउंड के अंदर क्या होता है कि आप सारे के सारे पाथ्स को एक्सपैंड करते हैं, लेकिन ब्रांच एंड बाउंड में हम सारे के सारे पाथ्स को एक्सपैंड नहीं करके हम लोग सिर्फ उन्हीं पाथ्स को एक्सपैंड करेंगे जहां से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू कम. ये आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे रूट है. So what is a root node? A root node is one in which it consists of whole search space. उसके बाद जब हम एक्सपैंड करते हैं तब हम एक वाइज डिसीजन लेते हैं कि क्या हमें दोनों को एक्सपैंड करना है या सिर्फ यस वाले को एक्सपैंड करना है और नो वाले को एक्सपैंड नहीं करना है. अगर हम दोनों को एक्सपैंड करते हैं तो हमारी सर्च स्पेस जो है वो नोड 1 एंड नोड 2 दोनों पर जाती है, यानी हमें नोड 1 भी सर्च करना है और नोड 2 को भी सर्च करना है. लेकिन अगर हम केयरफुल डिसीजन ले पाते हैं कि हमारा आंसर नोड 2 में नहीं है, नोड 1 में है, तो उससे क्या होता है कि हमारी सर्च स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाती है और हम अपने आंसर को इन ऑप्टिमल टाइम या लेस टाइम में फाइंड आउट कर सकते हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू इज एट ईच लेवल we need to make a decision about which nodes to include in the solution set. किन नोड्स को सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड करना है और किन नोड्स को सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करना है. The next question that comes to our mind is, which are the problems for which we can use branch and bound? So the first thing is, branch and bound is a best suited algorithm set of design where the problem is a discrete optimization problem.
Discrete means something like good, bad, and average, 0 and 1. If your problem is discrete and not continuous, then obviously you should opt for branch and bound. The second is that in case you are using the combinatory optimization problem. What is combinatory optimization? It is the process of finding the minimum and maximum, या minimum या maxima of a objective function. ये मैं आपको already पहले बता चुका हूँ. In case you are trying to find the minima or maxima of some objective function, there also the branch and bound works very effectively. Now we move to the second part of this lecture, that is we are going to solve the traveling salesman problem with the help of branch and bound. So first of all we need to understand कि हमें क्या क्या input मिला हुआ है and what is the expected output from the traveling salesman problem. So what is given is a set of some cities and the distance between each pair of the cities. So what is given to us is कि हमें एक cities के नाम दिए हुए हैं और उन cities के बीच में कितना distance है वो हमें given है. तो इसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है सिटीज को देने के लिए और उनके बीच में डिस्टेंस को देने के लिए? दैट इज ग्राफ. तो हमें एक ग्राफ गिवन होगा दैट विल कंटेन सेट ऑफ सिटीज एंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ द सिटीज. हमें करना क्या है? सेल्समैन है, द सेल्समैन हैज टू विजिट ईच सिटी एग्जैक्टली वंस. दैट मींस उसने सारी सिटीज को ट्रैवर्स करना है. ट्रैवर्सिंग की डेफिनेशन क्या है? विजिटिंग ईच नोड एग्जैक्टली वंस. तो सेल्समैन ने क्या करना है? उसने हर नोड को एग्जैक्टली वंस विजिट करना है और उसे अपनी ओरिजिनल सिटी पर वापस भी आना है. तो ट्रैवर्सिंग में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें आप जिस सिटी से स्टार्ट करते हैं आपको उसी सिटी पर वापस भी आना है. तो व्हाट इज द कंडीशन? द कंडीशन इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट. शॉर्टेस्ट कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमें डिस्टेंस गिवन है. बिकॉज वी आर गिवन द डिस्टेंस, तो हमें उस डिस्टेंस को कंसीडर करके वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट. जैसे एक सेल्समैन एक सिटी से सभी सिटीज को एग्जैक्टली वंस विजिट करके वापस आ जाए. So this is an example, students. As you can see in this, let us suppose that the salesman starts from city A. उसे सभी cities को visit करके वापस आना है. तो he starts from A, goes to B. From B it goes to D and then to C and back to A. So what is the path? A to B to D to C to A. What is the total cost? The total cost is 10 plus 25 plus 30 plus 15, total 80 units. Units can be in terms of kilometers or units can be in terms of time. तो वो अपने हिसाब से चलेगा. So 80 is the minimum cost that will be incurred by the traveling salesman to visit each city and come back to its original city. So अगर आप कोई भी और पाथ ढूंढेंगे, the answer will or the units will not be less than 80 in case you are using the traveling salesman problem. Solution to the traveling salesman problem using branch and bound. So what is our next is that we are going to find a solution. How actually we come to this answer? उसने कैसे डिसाइड किया कि A से B जाना है, B से D जाना है और D से C and then back to A. तो उसके लिए अब हम एल्गोरिथम करेंगे. दैट एल्गोरिथम इज टू फाइंड द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच. सो लेट अस लुक एट द डिफरेंट स्टेप्स जो हमें फॉलो करने हैं. So let us suppose that this is the given graph that you can see on your screen. What we are supposed to do is to find the minimum cost that a traveling salesman has to incur. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? We have to, step number 1, write the initial cost matrix
कॉस्ट मैट्रिक्स बनाना है, तो व्हाट विल बी द साइज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ सिटीज 4 हैं। So there are 4 cities. So the size of the matrix will be 4 into 4. So what will be the total size of the matrix? The total size of the matrix will be 4 into 4. A, B, C, D as rows and A, B, C, D as columns. There is no edge from A to A. A से A तक कोई भी edge जो है वो नहीं जाती है, सो दैट मीन्स वहां पर लिखा जाएगा इंफिनिटी। A to B एज जाती है एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट? द कॉस्ट ऑफ दैट इज 4। सो दैट मीन्स A to B 4। क्या A to C एज जाती है? A to C एज जाती है, द कॉस्ट इज 12 एंड A to D भी एज जाती है, द कॉस्ट इज 7। तो इसी तरह से आप हर नोड से हर दूसरी नोड पर जाने की कितनी कॉस्ट गिवन है आप उसको कंप्यूट करते हैं या एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। दैट इज कॉल्ड द इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स इन द स्टेप नंबर 1। सो व्हाट विल वी डू नाउ इज we will do the row reduction and we will do the column reduction। पहले हम लोग रो रिडक्शन करते हैं और दूसरे में हम लोग कॉलम रिडक्शन करते हैं। मैं बहुत ही आराम से आपको बताऊंगा कि व्हाट इज रो रिडक्शन एंड व्हाट इज कॉलम रिडक्शन, एंड आई एक्सपेक्ट कि हर स्टूडेंट उसको नोट कर लेगा कि हाउ टू अचीव द रो रिडक्शन एंड हाउ टू अचीव द column reduction. Basically, the meaning of row reduction and column reduction is that in case of row reduction, each column should have a 0 in the column। यानी उस कॉलम के अंदर 0 एंट्री होना जरूरी है। अगर आपके किसी रो के अंदर 0 एंट्री नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप उस रो में से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उस एलिमेंट को सभी कंपोनेंट्स ऑफ द रो में से डिडक्ट कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपका एक एलिमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंसिडर दिस पर्टिकुलर इनिशियल मैट्रिक्स, अगर आप इस इनिशियल मैट्रिक्स को बहुत ध्यान से देख सकते हैं तो अब हम इसका रो रिडक्शन करेंगे। तो उस रो रिडक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं आपका व्यू स्प्लिट कर देता हूं सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट। यहां से देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द रो रिडक्शन। क्या आपके फर्स्ट रो में 0 एंट्री है? द आंसर इज नो, देयर इज नो 0 एंट्री इन द फर्स्ट रो। सो विच इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट रो? आपके फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? आपके फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 4। दैट मीन्स आप सारे एलिमेंट्स इन द फर्स्ट रो में से 4 को डिडक्ट कर देंगे। आप इन्फिनिटी में से 4 को डिडक्ट करेंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा। 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 12 माइनस 4 इज 8 एंड 7 माइनस 4 इज 3। नेक्स्ट रो में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगेन देयर इज नो 0, तो हम लोग स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है? 5। That means we will deduct 5 from each element in the second row। 5 minus 5 is 0. Infinity minus 5 will be infinity and 18 minus 5 is equals to 13. Similarly, we can compute for row number 3 and row number 4 also। So that means हम लोगों ने रो रिडक्शन जो है वो अचीव कर ली है। So I repeat, we have been able to implement the row reduction
Now what we are supposed to do is we are supposed to compute the column reduction. अब हम क्या अचीव करेंगे? अब हम करेंगे कॉलम रिडक्शन। तो हमारे पास ऑलरेडी रो रिडक्शन अवेलेबल है। नाउ लेट अस इंप्लीमेंट द कॉलम रिडक्शन। अगर आप ध्यान से देखेंगे फर्स्ट कॉलम को, तो यू कैन सी दैट देयर इज ऑलरेडी एन एंट्री 0 इन द फर्स्ट कॉलम। आपके फर्स्ट कॉलम में ऑलरेडी एक 0 अवेलेबल है, तो आपको रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। आपके कॉलम 2 में भी 0 है, लेकिन आपके कॉलम 3 में 0 नहीं है। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 1। तो हम लोग सारे एलिमेंट्स जो कॉलम 3 में आते हैं उनमें से 1 को रिड्यूस करेंगे। सो 8 minus 1 is 7, infinity minus 1 is infinity, and 1 minus 1 is 0. The last is that we already have a 0 in the column. That means there is no need for any reduction to be performed. So what we get in the end is a column and row reduced matrix, in which what is a column and row reduced matrix, जिसमें हर रो और हर कॉलम के अंदर एक 0 एंट्री अवेलेबल है। सो दिस इज व्हाट वी आर एबल टू अचीव सो फार। हम लोगों ने सबसे पहले क्या अचीव किया? हमने सबसे पहले एक इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स बनाया जिसमें कॉस्ट दी गई थी हर नोड से हर दूसरी नोड पर जाने की। अगर कोई नोड एज एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमने उसको इन्फिनिटी दे दिया। देन व्हाट वी अचीव वाज, then we achieve the row reduction, and then we achieve the column reduction. So what we have is a column reduction जिसमें हर रो और हर कॉलम की एक एक एंट्री जो है वो 0 है। Now what we are going to compute is the cost 1. So what now we are going to achieve, we are going to achieve is the cost 1. So what is the cost 1? The cost 1 is the total of the total value of the, you can say, all the reductions that we have performed. Okay, तो अभी तक हमने कितनी रिडक्शंस परफॉर्म की? सबसे पहले हमने कॉलम रोज में से 4, फिर 5, और फिर 6, और फिर 2, और फिर 1। सो टोटल नंबर ऑफ रिडक्शंस परफॉर्म्ड बाय अस वर 5। हमने 5 तरह की रिडक्शंस परफॉर्म की हैं, और उन पांचों की वैल्यू कितनी थी? 4, 5, 6, 2 एंड 1। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द रिडक्शंस परफॉर्म्ड इज 80. So that is the end of the first iteration, not the solution, but the first iteration has been performed. The total cost of 1 that we have achieved is 18. So now the step number 2. So step number 2 is that we need to find the cost of M A to B. हमने A to B जाना है। What is the cost of A to B? हमने उसको ऐड कर देना है to the cost that we are going to compute for the node 2. So हमें क्या करना है? जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स हमने बनाया है उसमें से A to B का हमने कॉस्ट निकालना है। So what is the cost of A to B? ध्यान से देखिए, the cost of A to B is 0. I repeat, the cost of A to B is 0. Then set row A and column B to infinity. That means set B to A is equals to infinity. तो हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने देखा कि A to B कितनी कॉस्ट है। A to B कॉस्ट कितनी है? A to B कॉस्ट इज 0। तो हमने कॉस्ट ऑफ A to B को लिख लिया 0। This is the cost of A to B, which is 0. The second step says B to A, यानी cost of B to A को आप infinity set कर दीजिए।
तो बी टू ए क्या है, बी टू ए इज दिस वन, और हमने इसको क्या करना है, इसको सेट कर देना है टू द इंफिनिटी। तो अब हम देखते हैं कि हमने स्टेप नंबर 1 में ये वाली चीज को अचीव किया है या नहीं अचीव किया है। सो देयर यू सी दैट वी हैव डन इट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू अचीव इज, the next thing that we are going to achieve is, now we are going to compute the row reduction and the column reduction. I hope we have already done the row reduction and the column reduction. row reduction और column reduction हमें आता है। अगर हम row and column deduction करते हैं तो this is something that we are going to achieve. सो इन्फिनिटी में से ऑब्वियसली हम किसी चीज को माइनस नहीं कर सकते हैं, तो वो तो वही रहेगा। अदर देन दैट यू कैन सी कि हर कॉलम में एक रो में एक जीरो है और इन्फिनिटी है, ऑल द एंट्रीज आर इन्फिनिटी। सो व्हाट वी हैव अचीव्ड इज द कॉलम रिडक्शन एंड द रो रिडक्शन फॉर ए टू बी। दिस इज द मैट्रिक्स दैट वी अचीव। I repeat, this is the matrix that we achieve. Now what will be the cost of 2? हमने cost of 1 compute की थी। मैं आराम से आपको दोबारा बताता हूं, what was the cost of 1? आपने जितनी भी रिडक्शंस परफॉर्म की थी उनका सम निकाल दिया था, तो कॉस्ट ऑफ 1 निकल गया। what will be the cost of 2? The cost of 2 is equal to cost of 1. Cost of 1 हमने कितनी निकाली थी, cost of 1 was 18 plus the cost of going from A to B. A से B जाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट थी given, which was 0. That means 18 plus 0. और इसके अलावा आपने जितनी भी कॉलम या रो रिडक्शन में जितनी भी डिडक्शंस की हैं उनको ऐड कर दीजिए। और इस एग्जांपल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गोइंग थ्रू दीज, दो डिडक्शंस की हैं, वन इज 13 एंड वन इज 5। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 इज 36। सो आई होप this thing is clear to everyone how we achieve that. Now go back to the initial matrix. So this is the initial matrix. Now we will compute the cost from A to C. So what is the cost from A to C? Please ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स के अंदर हम वापस आ गए हैं। What is the cost of A to C? The cost of A to C is 7. So that means M of AC is equals to 7. And what we are going to do is, we are going to convert the CA, we are going to convert the CA into infinity. We are going to convert the CA into infinity. तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो we are going to achieve both of these things. So we are going to check the value of M of AC, which is equal to 7, and we are going to change the value of M of CA into infinity. So this is what we are going to get, and then what we are going to do is, we are going to perform the row reduction and the column reduction again. I hope the column reduction and row reduction is clear to you. या तो सारी एंट्रीज इंफिनिटी हो जाए, आप मिनिमम को माइनस कर दीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ 1, कॉस्ट ऑफ 2 नहीं उठाना है, प्लीज रिमेंबर, आपको कॉस्ट ऑफ 1 उठाना है। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ 1? कॉस्ट ऑफ 1 कितना था, 18। ए टू सी कॉस्ट कितना था, 7। तो कॉस्ट ऑफ 1 कितना था, 18, कॉस्ट ऑफ ए टू सी कितना था, 7, और हमने कोई भी रिडक्शन परफॉर्म नहीं की क्योंकि ऑलरेडी
all the entries contained as 0. So that means the cost of 3 is 25. Similarly, we will also compute the path from A to D. And I am not going to explain this thing again. हमें रो एंड कॉलम डिडक्शन को परफॉर्म करना है, और परफॉर्म करने के बाद कॉस्ट ऑफ 1 कितना था 18, ए टू डी जाने के लिए कितना कॉस्ट है, ए टू डी आप यहां पर देख सकते हैं, ए टू डी जाने के लिए कॉस्ट 3 है, और इस एग्जांपल में सिर्फ एक ही रिडक्शन परफॉर्म हुई है एंड दैट रिडक्शन इज 5. So what is the cost of 4 is equals to 26. और आप देख सकते हैं that cost of 1 हमें ऑलरेडी पता था, cost of 1 था 18, cost of 2 हमने कंप्यूट किया is 36, cost of 3 is 25 and cost of 4 is 26. So now how we are going to reach our final answer? थोड़ा सा ध्यान देना है हमने, हाउ टू रीच अवर फाइनल आंसर. वी चूज द नोड विद द लोएस्ट कॉस्ट. कॉस्ट 1 को भूल जाइए, कॉस्ट 2, कॉस्ट 3 और कॉस्ट 4 में से सबसे कम कॉस्ट किसकी है? द आंसर इज 25. तो सबसे पहले हम कहां पर जाएंगे? फ्रॉम ए वी विल गो टू सी. दैट मीन्स हमें हमारा पहला पाथ मिल गया है, हम लोग ए से सी पर जाएंगे क्योंकि ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी में सबसे कम कॉस्ट ए टू सी की है. नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 इज वी आर गोइंग टू रिपीट ऑल ऑफ द स्टेप नंबर 2 अगेन. हमने स्टेप नंबर 1 में क्या किया था? ए टू बी, ए टू सी एंड ए टू डी को कंप्यूट किया था. अब हम लोग बी टू डी को कंप्यूट करेंगे, तो उससे हमारा पाथ जो है आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर ए टू सी हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. अब हम ए टू सी टू बी जाएंगे, देन ए टू सी टू डी जाएंगे, ए टू सी टू डी. इज इट क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूं, हम लोग ऑलरेडी ए टू सी जा चुके हैं, दैट मीन सिर्फ 2 बचते हैं, एक बी और एक डी. तो हम लोग ए टू सी, उसके बाद बी जाने का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ए टू सी टू डी का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो व्हाट वी गेट आफ्टर दैट इज दिस. द कॉस्ट टू गो फ्रॉम ए टू सी टू बी इज इंफिनिटी. And what is the cost of going from A to C to D is 25. तो हम इसमें से किसको सेलेक्ट करेंगे? A to C to D. That means we have also computed our second path, that is हम लोग सबसे पहले A to C जाएंगे और then हम लोग up to D जाएंगे. And after that we are only left with one path, that is A to C to D. अब हम सिर्फ बी बचा है. तो हमें ये तो पता चल गया है कि हमने बी जाना है, लेकिन हमें कम फिर भी उसकी कॉस्ट कंप्यूट करनी पड़ेगी. तो अब हम उसकी कॉस्ट कंप्यूट कर लेते हैं. तो द कॉस्ट कम्स आउट टू बी 25. सो दैट मीन्स अगर हम लोग ए टू सी टू डी टू बी एंड ए जाते हैं, दैट द कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमल पाथ विल बी 25. अब हमने करना क्या है? हमने सारी की सारी कॉस्ट जो निकाली हैं उनको ऐड कर देना है. दैट विल बी आवर टोटल कॉस्ट. दैट मीन्स ए टू सी, सी टू डी, डी टू बी एंड बी टू ए. दैट इज द फाइनल ऑफ आवर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. लेकिन फिर भी इसको एंड करने से पहले मैं आपको फिर से दोबारा से एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि हमने किया क्या है. तो मेरी रिक्वेस्ट है दैट before we end this lecture, I request that every student should focus on what we achieved. तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले ये देखना है कि what is given to us. सबसे पहले हमें गिवन था हमारा एक इनिशियल ग्राफ. हमने उस ग्राफ से हमारा एक इनिशियल कॉस्ट मैट्रिक्स निकाला. कॉस्ट मैट्रिक्स को कैसे कंप्यूट करते हैं? अगर एक
नोड से दूसरी नोड पर जाने के लिए एज है तो उसकी कॉस्ट लिख दीजिए। अगर एक नोड से दूसरी नोड पर जाने के लिए एज नहीं है तो उसको इन्फिनिटी लिख लीजिए। डन। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूट करेंगे। कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूट करने के लिए हमें रो और कॉलम रिडक्शन परफॉर्म करना है। तो अब हम समझेंगे कि व्हाट इज रो रिडक्शन एंड व्हाट इज कॉलम रिडक्शन। व्हाट इज रो reduction? Row reduction is one in which at least one entry in each row is zero. So what is row reduction? In which at least one entry in each row is zero. Similarly, what is column reduction? In which at least one entry in each column, रो की जगह कॉलम लिख दिया, सो इन विच एट लीस्ट वन एंट्री इन ईच कॉलम इज जीरो, दैट विल बी द कॉलम रिडक्शन। और ये अचीव कैसे करते हैं? दो चीजें पॉसिबल हैं, या तो ऑलरेडी आपके रो के अंदर एक एंट्री है विच इज जीरो, एंड इन केस आपके रो के अंदर एंट्री जीरो नहीं है, देन प्लीज नोट डाउन, डिडक्ट each element in the row by smallest element। जो भी आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उससे डिडक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं कैसे हो रहा है ये। आप यहां पर कंसीडर कीजिए, तो ये हमने अचीव कर लिया है। जैसा आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में कोई भी एंट्री जीरो नहीं है, लेकिन फर्स्ट रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4 है। तो हम लोग हर एलिमेंट को अगर 4 से माइनस करेंगे तो सेकंड एंट्री जो है दैट इज 4 माइनस 4 विल बिकम जीरो। तो इससे हम जितनी भी रिडक्शंस करेंगे, कॉलम और कॉलम रिडक्शन और रो रिडक्शन को अचीव करने के लिए जितनी भी हमने रिडक्शंस की हैं, दैट बिकम्स योर कॉस्ट ऑफ वन। Now with this we will compute the path from A to B, A to C and A to D। हम A to B का पाथ कंप्यूट करेंगे, A to C का पाथ कंप्यूट करेंगे और A to D का पाथ कंप्यूट करेंगे, और जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी हम लोग वही उसी पाथ को फाइनल करेंगे। नाउ मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा आपको दोबारा से कि हाउ वी कैन कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ पाथ फ्रॉम A to B। उसके लिए आपको सबसे पहले एंट्री देखनी पड़ेगी कि ए टू बी जाने के लिए गिवन कॉस्ट कितनी है, यानी ए टू बी के लिए जो एंट्री है उसकी कॉस्ट कितनी है। जब आप वो नोट कर लेते हैं तो उसके बाद उसी एंट्री को इन्फिनिटी कर देंगे और बी टू ए को भी इन्फिनिटी कर देंगे। यहाँ पर वापस चलते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं कि ए टू बी हमने जाना है, तो ए टू बी की कॉस्ट कितनी है? ए टू बी की कॉस्ट जीरो है, तो जीरो को नोट कर लीजिए, बाद में इसको भी इन्फिनिटी कन्वर्ट कर दीजिए और बी टू ए को भी इन्फिनिटी कन्वर्ट कर दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली कॉलम रिडक्शन एंड रो रिडक्शन परफॉर्म करना है। वो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही सिखा चुका हूं, हाउ टू परफॉर्म द रो रिडक्शन एंड द कॉलम रिडक्शन। जब हम वो परफॉर्म कर देंगे कॉलम एंड रो रिडक्शन, फिर उसके बाद वी विल बी एबल टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ हाउ टू गो फ्रॉम ए टू बी। Please note down what is the formula for computing the cost from A to B। उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ वन चाहिए, आपको इनिशियल कॉस्ट ऑफ A to B चाहिए, प्लस जितनी भी आपने रिडक्शंस की हैं उसकी वैल्यू चाहिए। जब आप सबका सम निकालेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ टू मिल जाएगी, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ टू है किसकी? A to B की। सिमिलरली यू विल कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ A to C एंड A to D। जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी हम लोग उसी को अपना फाइनल पाथ मानेंगे। इस केस में क्या था? A to
A to B. So that is it. So I hope it is clear to you. The video will be available to you on YouTube, and the notes will also be sent to you. If you have any questions, because there is no time left, you can ask me your questions in the comment section.